Good morning, dear all. So today I have decided to structure our videos into two parts. In in one part, I will be covering theory and conceptual part, and in one of the part, I will be covering the most common question paper that are coming in examination, various examination. From tomorrow onwards, I will be covering engineering service examination question paper because I have decided to take this question paper because engineering service examination question paper is taken as a reference paper. That's why I will be covering engineering service examination. In between, if any exam I will think important, I will be also covering the question paper of that exam. Side by side, parallelly, I will be also covering the theory part where I found that this section must be covered. So in theory portion, I will be covering important portion, and side by side parallelly I will be also covering the question paper of engineering service examination. So let's just get started. Today I am covering degree of indeterminacy topic because it can be seen that degree of indeterminacy is a very simple topic, but one or two question you must find in any competitive examination. That's why I have decided to cover the degree of indeterminacy. This series will cover two parts. In first part I will be covering only static indeterminacy. In the second part I will cover kinematic indeterminacy. So let's start now. So as we know, degree of indeterminacy is nothing but for a simple structure, for a simple beam or any frame or truss, we can say, it can be classified into two types. Structure may be either determinate or indeterminate depending upon the number of reactions or number of force that are developing in the structure. तो कोई भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस सिंपली मीन्स दैट कि उस स्ट्रक्चर के हर एक रिएक्शंस की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम हर एक लोकेशंस पे फाइंड कर सकें. दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स. एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड ईच एंड एवरी रिएक्शंस एंड अननोन कंपोनेंट्स टू बी नोन. तो स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट कब कहते हैं? कि अगर उस स्ट्रक्चर को हम थ्री इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से अगर हम फाइंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. Else our structure is called indeterminate structure. So that's what I will be covering in today's video. Okay, let's go ahead. So the primary aim of structure analysis is to find forces or moment in various component of the structure. If these can be found using equation of static equilibrium, which is what this is, the equation of static equilibrium, then it is called determinate structure, else it is called statically determinate structure. So this is the static equilibrium equation. Sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, sigma m is equal to 0, which means that summation of all the forces in vertical direction within a structure should be equal to 0, because if this not happen, our structure will move in the direction in which resultant force is acting. Similarly, this is for horizontal force, this is for vertical force, and moment also. So moment at a point must be equal, summation of all the moments acting at a point must be equal to 0, bending moment. So this is the equation of static equilibrium. So if our structure can be analyzed by using these equation only, then our structure is a statically determinate structure, else our structure is indeterminate. This is the equation available without any additional calculation. So this is for 2D structure. For 3D structure, we have this much equation, that means 6 equation for statically equilibrium condition. This 6 equation can be fx is equal to 0, fy is equal to 0, sigma fz is equal to 0. That means in all three directions we can now equate that summation of all the force in this direction, summation of force in this direction, summation of all the force in this direction is 0. Also the moments are 0. Moments are 0 in these three directions. So in 3D structures we have 6 equation of static equilibrium, whereas in 2D we have 3 equation of static equilibrium to analyze our structure freely without any additional requirement of any equations. Now here is the common example. If
Suppose this is cantilever, so this is the determinate structure, this is also determinate structure, this is also determinate. Now this is indeterminate, this is indeterminate, and it is also indeterminate. How we can define it, we will see you in just next slide. But if our structure cannot analyzed by equation of static equilibrium, then what we can do, we can formulate additional equations to analyze the indeterminate structures along with the degree of indeterminacy number. So सपोज हमें जो भी स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, 3 इक्वेशंस तो हमारे पास अवेलेबल है 2D के केस में, और 6 इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है 3D के केस में. इसके अलावा और हमें जितनी की रिक्वायरमेंट है, वी कैन फॉर्मुलेट दैट यूजिंग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, राइट. सो फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वी कैन गो फॉर equilibrium equation plus compatibility equation, whereas for determinate structure we can only use 3 equation of static equilibrium or 6 equation of static equilibrium in case of 3D structure. So these 3 structure is determinate structure, whereas these 3 structures are indeterminate structure. We'll see how we can define it. So for a fixed support, the reaction component, that means this support can resist the direction of force and movement in 3 direction. Fixed support वर्टिकल डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक मोमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है एमजेड डायरेक्शन में. तो अगर किसी स्ट्रक्चर में फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ना ही तो ये स्ट्रक्चर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ना ही ये रोटेट कर सकता है जेड डायरेक्शन में. दिस इज फॉर 2D. सो रिएक्शन कंपोनेंट कितना हो गया टोटल, 1, 2 एंड 3. और यही स्ट्रक्चर अगर 3D में है तो 6. तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, 3 रिएक्शन फॉर 2D एंड 6 रिएक्शन फॉर 3D. सिमिलरली फॉर अ हिंज सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन प्रोवाइड करता है वो वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में. दैट मीन्स इट कैन ओनली रेसिस्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट, इट कैनॉट रेसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट. अगर किसी स्ट्रक्चर में हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया गया तो स्ट्रक्चर उसके अबाउट रोटेट हो सकता है, बट इट कैनॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, आर एक्स और आर वाई. If it is a 2D structure, if it is a 3D structure, then 3 reactions will be formed. That means RZ भी यहाँ पे जुड़ जाएगा. That means now it cannot move in Z direction as well, but it can rotate in any direction RX, RY, RZ. So rotation is free in case of hinge support. So reaction will be 2 in case of 2D and 3 in case of 3D. Similarly in roller support, it is only providing one of the reaction in Y direction, irrespective of the dimension. That means either it is a 2D case or 3D case, it will only provide the vertical reaction. That means if any structure is supported on the roller support, it will only allow a structure to remain in position in the vertical direction only. This structure can move in X direction, this structure can move in Z direction, and also it can rotate in any of the X, Y, Z direction. So the only reactive component in 2D and 3D, both of the cases, is 1. So for fixed support, reaction component will be 3 for 2D, 6 for 3D. For hinge support, reaction component will be 2 for 2D and 3 for 3D. Whereas for roller support, it will be always 1. So this thing you have to remember. Now this is the formula, this is the reaction component, and values of these can be found using equations of static equilibrium. This is what now we can define it. That means these are the reaction component or the unknown component that we can find using these equations, right? So this is the static equilibrium. So by formulating this, by formulating fx is equal to 0, we can find the either rx in this case, either rx in this case. So to find the rx, we will formulate sigma fx is equal to 0. To find the ry in this case or in this case, we can use sigma fy is equal to 0. Similarly, to find the m, we can use सिग्मा m इज इक्वल टू 0. तो इन सभी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो अगर हमें सिर्फ एक फिक्स सपोर्ट को एनालाइज करना है तो वी कैन इजीली यूज 3 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशन है और 3 हमारे पास अननोन है 2D के केस में और 3D के केस में भी. तो वी कैन सिंपली एनालाइज वन ऑफ द सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट. सिमिलरली यहाँ भी, तो यहाँ भी हमें आराम से हम कर सकते हैं. सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 लगाएंगे तो आर वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 लगाएंगे तो आर एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. मोमेंट यहाँ पे है नहीं. सिमिलरली यहाँ भी सिग्मा
एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो आर वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अगर किसी सब स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 है, उसको बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3, इफ इट इज 3 अप टू 3 देन इट इज कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, and that can be easily analyzed by static equilibrium equation, because we know that if there is 3 reaction we have 3 equations also. So by using 3 equations we can easily find the values of 3 unknowns. If it is more than 3, then and how can we count? We just have seen here by simply counting the number of the reactions that supports develop. Moving ahead, अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्टैटिक मीन्स व्हेन आवर स्ट्रक्चर इज इन स्टेबल कंडीशन, देन for the stability we will check static indeterminacy, and for kinematic we will check degree of freedom कि हमारा स्ट्रक्चर कितनी डायरेक्शन में मूव हो सकता है और मूव होने के लिए कितनी डायरेक्शन में फ्री है। इट इज जस्ट अपोजिट, दिस विल मेजर आवर स्ट्रक्चर इज हाउ मच फ्री इन हाउ मेनी डायरेक्शंस आवर स्ट्रक्चर कैन मूव, और दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रेंट इन हाउ मेनी डायरेक्शन और हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर। सो दिस इज द टू पार्ट्स। तो इस पार्ट में हम सिर्फ स्टैटिक कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग काइनेमेटिक कवर करेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ अननोन्स फोर्स इन मेंबर्स और एट सपोर्ट रिएक्शन। ये दो बातें याद रखिएगा कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, यही जो हमने अभी डिस्कस किया, दीज आर द अननोन्स। तो हमें इसको दो जगह पे फाइंड करना है, या तो मेंबर में या फिर सपोर्ट रिएक्शन पे। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ये सपोर्ट रिएक्शंस हैं, दीज आर नॉट मेंबर रिएक्शंस, दीज आर सपोर्ट रिएक्शंस। सो दिस विल बी ओनली कवर्ड दिस पार्ट। मेंबर फोर्स को हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ अननोन्स ईदर इन मेंबर और सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल, जो हमने अभी डिस्कस किया, 3 फॉर 2D एंड 6 फॉर 3D। तो टोटल इंडिटरमिनेसी मिलकर क्या होता है, दिस इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी एंड डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल है, डिग्री ऑफ इंटरनल और डिग्री ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जनरली किससे बनता है, सपोर्ट रिएक्शन से। तो सपोर्ट रिएक्शन जो रिएक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी डेवलप होता है, और जो मेंबर की वजह से डेवलप होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंटरनल मेंबर के जो भी मेंबर्स की वजह से जो रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डेवलप होता है, और सपोर्ट रिएक्शन की वजह से एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डेवलप होता है। नाउ हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फाइंड करने का क्या तरीका, इसके दो पार्ट्स हुए। तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दो पार्ट हुए, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन, इंटरनल ड्यू टू मेंबर रिएक्शन। तो अब हम दोनों का देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो देख सकते हैं हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एक्सटर्नल इज ओनली ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। सो दिस कैन बी फाउंड यूजिंग सिंपली दिस फॉर्मूला, रिएक्शन डेवलपिंग, रिएक्शन का फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, -3 फॉर 2D, प्लेन को हम 2D भी कहते हैं, एंड R-6 फॉर स्पेस फ्रेम, दैट मीन्स 3D। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल, तो यही हमारा 3 एंड 6 है। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। इंटरनल कैसे निकालेंगे, तो टोटल हम पहले फाइंड कर लेंगे। टोटल हमारा DS है और ये हमारा एक्सटर्नल है और ये हमारा इंटरनल है। तो इंटरनल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे, टोटल इंडिटरमिनेसी माइनस एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला हमने ये रहा, टोटल हम ऐसे फाइंड करेंगे, एक्सटर्नल हम ऐसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इंटरनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम्स। फ्रेम किसको कहते हैं, जिसमें मेंबर्स स्ट्रेट लाइन में हो, इंक्लाइन नहीं हो, और उनके जो जॉइंट्स हैं वो रिजिड हो, इसको बोलते हैं हम फ्रेम। जॉइंट्स आर रिजिड एंड मेंबर्स आर स्ट्रेट, इट विल बी नॉट इंक्लाइंड, इसको हम बोलेंगे फ्रेम। फ्रेम आर रिजिड जॉइंटेड, और रिजिड जॉइंट किसको कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिएस्टेंट मिलता है,
एक्स्ट्रा रिएस्ट्रेंट मिलता है, रिएक्शन मिलता है एक्स्ट्रा। तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे सिंपल अप्रोच क्या है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर है, हम उसको कट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 3c माइनस आर डैश और 6c माइनस आर डैश। तो प्लेन फ्रेम के लिए 3c, जब हमने देखा था कि 3 रिप्लेस हो जाता है हमेशा 6 में, तो आप इस सिंपली इसको याद रख सकते हैं। c इज द नंबर ऑफ कट टू मेक स्ट्रक्चर डिटरमिनेट। तो देखिए ये स्ट्रक्चर मान लीजिए है हमारा, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है। अभी हमारा स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट है क्योंकि 3 रिएक्शन यहाँ पे है और 3 रिएक्शन यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 6। 6 में से हमारे पास इक्वेशन तो सिर्फ और 3 अवेलेबल है, तो हमारे पास अननोन अभी भी 3 रह जाएगा। तो 3 की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, बट 3 की इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, कितने कट हमें बनाने पड़ेंगे जिससे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट बन जाए। तो अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ से कट कर दें तो ये इधर का पार्ट अलग हो गया, इधर का पार्ट अलग हो गया। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट हो गया, तो अब इसके पास टोटल 3 ही रिएक्शन बचे, इसके पास भी 3 ही रिएक्शन बचे। तब हम इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी वही 3 इक्वेशन है और 3 अननोन भी है, इजीली एनालाइज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा। तो हमने स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांट दिया। तो कह रहा है कि कट कितने लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिटर्मिनेट हो जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमें कट इस तरह से लगाने कि हमारा स्ट्रक्चर ओपन ट्री लाइक हो जाए, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक बेस होगा, रूट सिर्फ एक ही हो सकता है। दैट मीन्स जो इसका रूट है वो सिर्फ एक होगा, और ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, मतलब ये एक ही रूट होगा। ट्री कैन नॉट हैव क्लोज लूप ब्रांच। तो ऐसा ब्रांच नहीं हो सकता कि ये यहाँ से यहाँ आके ऐसे ब्रांच हो रहा है, ऐसे ब्रांच नहीं करना है। ब्रांच हमेशा ओपन होगा, ओपन ट्री लाइक, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम सिंपली सी बना सकते हैं। और आर क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट अप्लाइड टू मेक ऑल ज्वाइंट्स रिजिड। अगर कोई ज्वाइंट रिजिड है दैट मीन्स फिक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई हिंज है तो हमें इसको फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी रिएक्शंस और अप्लाई करनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड आर डैश। या फिर अगर रोलर सपोर्ट है तो हमें कितनी रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए हम जानते हैं अगर फिक्स है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, अगर हिंज या रोलर है तो हमें उसे अप्लाई करना है। तो हमें पता है फिक्स की रिएक्शन 3 होती है, हिंज की रिएक्शन 2 होती है और रोलर की रिएक्शन 1 होती है, 1। Now to convert a hinge support into fixed support, we have to apply one more restraint. Then it will be converted to rigid joint. Whereas for roller support, we will have to apply 2 reaction component. Which one? Fx and M. So for hinge support, we have to only apply 1, and for roller support, we have to supply 2 restraint. तो ये सारा समझ में आ गया खेल। C क्या है यहाँ पे, कट रिक्वायर्ड, और R क्या है, रिस्ट्रेंट, ताकि हमारा फिक्स बन जाए। तो बहुत सिंपल है, आगे चलेंगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। देखिए इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कितने नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट माइनस में सपोर्ट रिएक्शन ऑफ एक्चुअल सपोर्ट। तो हिंज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंज हमें 2 है तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिक्स के लिए कितना होता है 3, तो 3 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स फॉर हिंज सपोर्ट वी हैव टू अप्लाई 1 एज आर डैश। Similarly for roller support 3 minus 1, that means we have to supply 2 as r dash value। कहाँ पे, इस इक्वेशन में। ठीक है, कट तो आपको पता ही चल गया कि कट ऐसा बनाना है, एग्जांपल देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। नाउ रिस्ट्रेनिंग मेंबर्स, अगर मेंबर में कहीं पे हिंज आ रहा है या कुछ आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, तो प्लेन फ्रेम विद इंटरनल हिंज। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये प्लेन फ्रेम है और यहाँ पे इंटरनल हिंज दे दिया। ठीक, उस केस में हमें क्या करना है, तो अगर नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट मोमेंट अप्लाई रिक्वायर्ड, तो इसके लिए क्या होगा, तो हमें यहाँ पे तो रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करना ही करना है सपोर्ट पे। मान लीजिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट कितना हो जाएगा, ये तो फिक्स है, इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको देखते हैं, इसके लिए हमें 1 की जरूरत है क्योंकि हिंज है, तो 2 to 3 पहुंचना है तो 1 चाहिए। और यहाँ पे कितने में रिस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि ये रिस्ट्रेंट बन जाए, तो उसके लिए है m-1। m इज द मेंबर मीटिंग एट द हिंज। तो यहाँ पे कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो 2 minus 1, दैट मीन्स here 1 will be the restraint required to make this structure as rigid। Similarly अगर 3D है तो 3 times m-1, यही हमें यूज करना है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स। ये स्ट्रक्चर है, हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें C फाइंड करना है। हम जानते हैं 3c माइनस आर डैश होता है फॉर्मूला, तो 3c माइनस आर डैश,
3 कट कितने रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमारा ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा स्ट्रक्चर, इधर का अलग हो जाएगा। तो कट की जरूरत, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और आर डैश रेजिस्टेंट कितनी जरूरत है, एक रेजिस्टेंट यहाँ पे जरूरत है और एक रेजिस्टेंट अभी यहाँ पे हिंज तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे जरूरत है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 है। बस फार्मूले में हमें डाल देना है 3c माइनस आर डैश। दिस इज द टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, जस्ट रिमेंबर इट, दिस इज नॉट एक्सटर्नल और इंटरनल, दिस इज द टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। तो 3 माइनस 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1, 3 minus 1 become 2. So total degree of static interminacy would become 2. Now out of these two, how much is external and how much is internal, now we have to find. So for external we know that this is the r minus 3 for 2D and r minus 6 for 3D. So r is the number of reactions, so 3 reaction here, 2 reaction here, so that's why it would become 5. तो R minus 3 is the 3 equation of static equilibrium. This is from here. So R is 5 here. So 5 minus 3, it is 2. So out of total 2 static interminacy, 2 is external. So obviously internal will be 0 because out of 2, 2 is the external interminacy. So to find the internal, we just subtract the external indeterminacy from total degree of indeterminacy, static indeterminacy, right? तो चलिए ये था कॉमन एग्जांपल, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अगेन अ फ्रेम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इंटरनल हिंज है, राइट? तो चलिए अब देखते हैं हम इसको क्या करना है। हमें पता है 3c माइनस आर डैश का फॉर्मूला में चाहिए। तो कट कितनी जरूरत है, कट तो सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो ये इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग। लेकिन अगर हम कट बनाते हैं और हिंज को कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बेंड हो जाएगा, तो हमें इसको रिजिड बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई रिस्ट्रेंट हियर ऑल्सो। तो चलिए C की वैल्यू तो हमें पता चल गया कि ये 1 है। R डैश रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड, तो एक रेजिस्टेंट तो यहाँ पे, क्योंकि ये हिंज है तो हिंज से हमें फिक्स बनाना है। इस यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ही फिक्स सपोर्ट। सो हिंज है तो एक की जरूरत तो हमें यहाँ पे है, R डैश एक तो यहाँ के लिए हो गया। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट, तो नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट इज 2 हियर। सो 2 माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक वहाँ के लिए चाहिए, यहाँ के लिए, और एक यहाँ के लिए, तो 1 प्लस 1 2। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, सो इट वुड बिकम टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितना आ गया 1। सो अब हमें चेक करना है कि एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल कितना है। एक्सटर्नल के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन काउंट करते हैं। तो 3 इसका रिएक्शन, 2 इसका रिएक्शन, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2। तो ये क्या कह रहा है, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितना है 1 है, उसमें से एक्सटर्नल ही दो है। दैट मीन्स वी आर प्लस 1 हियर विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे होगा, अगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस केस में हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का पार्ट जो कि इंटरनल है वो हमेशा -1 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट आवर स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि हमारे पास एक मेंबर डिफिशियंट है, एक मेंबर कम है। तो एक मेंबर कम होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट इंटरनली सेफ। तो क्या होगा, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, तो ये स्ट्रक्चर टिकेगा ही नहीं। ये स्ट्रक्चर यहाँ से बेंड हो सकता है, यहाँ से बेंड हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं रहेगा। तो -1 डिस्प्लेइंग दैट आवर स्ट्रक्चर इंटरनली अनस्टेबल, राइट? ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दोनों ही, ये हिंज है, ये रोलर है, तो इसका रिएक्शन हो गया 2, इसका रिएक्शन हो गया 1। दिस इज द रिएक्शन, राइट? सो सबसे पहले हम देखते हैं कट कितनी जरूरत है। तो एक कट हम यहाँ पे बनाएंगे, एक कट हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ये इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग, तो ट्री स्ट्रक्चर बन गया। तो नाउ वी कैन सिंपली से दैट आवर स्ट्रक्चर इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो सी का काम हो गया, सी इज इक्वल टू 2 नाउ। तो 3c माइनस आर डैश में से हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है आर डैश की, कि कितना रिस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हिंज है तो हमें पता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा रिस्ट्रेंट, और यहाँ पे रोलर है तो यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे टू मेक इट फिक्स सपोर्ट। तो आर डैश की वैल्यू ऐड करते जाएंगे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे इंटरनल हिंज भी है दोनों जगह पे, तो मेंबर यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो एक इसका ऐड हो जाएगा m-1, और यहाँ पे भी हिंज है तो यहाँ भी m-1, तो डेट मीन्स अगेन 1। सो टोटल वुड बिकम 5, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग और वे ऑफ कैलकुलेटिंग आर डैश। सी तो बहुत क्लियर है, सी तो बहुत ईजी है निकालना।
चलिए फिर इसको फॉर्मूले में रख देंगे, 3c माइनस आर, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो c यहाँ पे पता ही है कट 2 है, 5 तो 1, 1 इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, आउट ऑफ विच हमें क्या करना है, DSE फाइंड करना है। तो DSE कैसे फाइंड करेंगे, r माइनस 3 से, तो r कितना है यहाँ पे, 2 और 1 3, तो 3 माइनस 3 दैट मीन्स 0, तो टोटल हमारा 1 है, उसमें से एक्सटर्नल कितना है, 0, राइट। सो इंटरनल कितना होगा DSI, टोटल माइनस एक्सटर्नल, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली तो डिटर्मिनेट है क्योंकि 0 है, बट इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, राइट। बट अनस्टेबल इसलिए क्योंकि दोनों जगह पे हिंज होगा तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर टिकेगा ही नहीं, ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा टिकेगा ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज रिटन है, बट इट इज अनस्टेबल। सो एक्सटर्नली इट इज determinate but it is unstable because displacement given to roller support will result in rigid body movement of the structure, क्योंकि ये भी रोलर है और ये दोनों हिंज हो गए, जैसे यहाँ से फोर्स आएगा ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, राइट। सो इट इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट बट इंटरनली इट इज अनस्टेबल, राइट। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले 3c माइनस आर डैश में से c की वैल्यू देखने, कट कितनी जरूरत है, देखो इसको हमें अलग पार्ट में, जितने सपोर्ट है उस पर एक ट्री खड़ा होना चाहिए, यहाँ से कट कर देंगे तो ये हमारा अलग ट्री हो जाएगा। अब इसको ये भी ट्री बनाना है क्योंकि यहाँ पे रूट है तो रूट एक ही चाहिए, तो हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कट है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कट की वैल्यू कितनी मिल रही है और आर डैश की वैल्यू कितनी मिली। अब आर डैश के लिए तो सिंपल है, नीचे तो कुछ चाहिए नहीं हमें क्योंकि नीचे तो सारा फिक्स सपोर्ट ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दोनों पे हिंज है, तो एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए, तो 2 आर डैश की वैल्यू तो इसमें 2 मिल गई हमें। कट की कितनी ज़रूरत है, 1 2 3, और अगर हम एक यहाँ से कट कर देंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर इधर का अलग हो गया, ये स्ट्रक्चर इधर का अलग हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तो सिर्फ एक ही कट करने की जरूरत है, नीचे हमें यहाँ पे 3 जगह कट करना पड़ेगा तभी ये मेंबर अलग होगा। तो कट की वैल्यू हो गई 4। नाउ वी कैन सिंपली फाइंड ds वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आर डैश, तो आर डैश इज 2, दिस वुड बी 10, तो 10 तो हो गया टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। नाउ आउट ऑफ दिस DSE कितना होगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 माइनस 3 is equal to 9. That means out of total 10, 9 is external, whereas internal would be 1 only, because out of total 10, 9 is external indeterminacy, whereas 1 would be internal indeterminacy। चलिए आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है स्पेस फ्रेम का। तो 6c माइनस आर डैश हम जानते हैं फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे अब कट देखते हैं, तो हर एक बेस के लिए, हर एक ट्री के बेस के लिए एक एक पोर्शन कट करना पड़ेगा, तो एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, तो चारों को चारों अलग हो जाएंगे, तो कट की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4। नाउ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, तो बॉटम में कुछ है नहीं, बॉटम में सारे फिक्स हैं तो 0, और कोई भी हिंज भी नहीं दिख रहा तो 0, तो 6c, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और आर डैश की वैल्यू 0, तो दिस वुड बिकम 24। अगेन DSE कैसे फाइंड करना है एक्सटर्नल, तो हम जानते हैं कि r माइनस 6, तो r माइनस 6 करना है यहाँ पे क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, तो r यहाँ पे कितना है, हम जानते हैं कि अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे 6 6 होगा हर जगह पे क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, तो 24 माइनस 6, so this would be 18। So out of total 24 degree of indeterminacy, 18 is external, तो DSI कितना हो जाएगा, internal 24 minus 18, so it would be 6, right? So in this way we can easily find degree of indeterminacy of any structure, either it is a space frame or in this case, now you can easily find, because this is a 3D structure, so first of all we will find cut, 1 2 3 and 4 cut, so cut is 6c minus r dash, so cut is 4, right? So r dash now, so these two are the fixed support, so no requirement of restraint. In this case we know that total, and now in this case what is the requirement, 6, because in 2D case we was
calculating the number of reaction required to make it fix. So in this case also we know that fix develops 6 reaction component, whereas hinge support develops 3 reaction component in case of 3D स्ट्रक्चर। तो 3 से हमें 6 तक पहुंचना है, तो हर एक के लिए हमें 3 की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे सपोर्ट के लिए 6 हो गया, किसकी, आर डैश की। तो 6 हो गया हमारा सपोर्ट रिक्वायरमेंट। अब जहाँ जहाँ पे भी हिंज है तो हमने देखा था 3 इंटू एम माइनस 1 का समेशन। तो देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय एम कितना है, मेंबर यहाँ पे 2 है, माइनस 1, तो यहाँ पे 3 की रिक्वायरमेंट है। अगेन यहाँ भी सेम, तो यहाँ पे कितना मेंबर मिल रहा है वो देखिए, तो 1 2 और 3 मेंबर यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा, यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 ही मेंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो 6 प्लस 3 9 एडिशनली, यहाँ पे 9 एडिशनली, टोटल आर डैश हो जाएगा 15, राइट। तो 6 माइनस 4 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 9। सो दिस वुड बी ds, total degree of static indeterminacy, and out of which how much is external? We know that r minus 6 since it is a space structure, space frame। अब रिएक्शन कितना है, 6 इसके 6 6 12, 12 प्लस 3 and 3, तो 12 प्लस 6 18 माइनस 6, total is 12। So static external indeterminacy is 12. So we can see that here total is 9 but external is 12. So dsi will be negative by how much, 12 minus 9, it is minus 3. It represents that our structure is unstable, because here if it is a hinge support, hinge, internal hinge, our structure will collapse very easily. Here also this structure will collapse very easily, because this is hinge, so it will not resist any moment, so this will collapse, this will also collapse. So it is representing deficiency of the reaction component. Now for beams, coming to the beam part, how we can calculate the degree of indeterminacy for beam. Now for this purpose our motive is to make the beam cantilever beam. Cantilever beam is the one-sided fixed support. So to make our beam cantilever beam, so what we have to do, so how many constraint we have to add, how many support we have to remove, so this is the thing we have to find out. That means to make our structure cantilever, how many support we have to remove and how many constraint we have to add, right? So this thing we have to keep in mind. So this is the only thing we have to keep in mind while calculating a static indeterminacy for the beam, right? Okay, moving ahead, to the question. This is the question. Now this is the continuous beam with internal hinge at this location, right? So now to find the static indeterminacy, a very simple thing is, first of all we have to make this beam cantilever beam, and second thing, to make it cantilever, how many supports are removed and how many constraint needs to be added. तो ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि कंस्ट्रेंट कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, राइट? तो कंस्ट्रेंट कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे हिंज। अगर ये हिंज सपोर्ट नहीं होता तो ये कैंटिलीवर आराम से बन जाता, बट अगर हम इन दोनों सपोर्ट को रिमूव कर दें तो, और यहाँ पे हिंज अगर नहीं होता तो ये सिंपली बन जाता हमारा कैंटिलीवर बीम। क्योंकि कैंटिलीवर बीम क्या है, एक साइड में फिक्स सपोर्ट, दूसरी साइड से ओपन, यही हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे हिंज की जरूरत नहीं है हमें, और इन दोनों सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें, राइट? तो इन दोनों सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे, इन दोनों सपोर्ट को हम हटा देंगे अपनी जगह से, और रिस्ट्रेंट, मतलब अब हमारा बीम रिस्ट्रेंट होना चाहिए कि टिका रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हिंज सपोर्ट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर ऐसे गिर जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो इसको स्ट्रेट रखे, ठीक, ऐसे स्ट्रेट रखे। तो रेस्ट्रेंट कितना जरूरत है हमें, कितनी मूवमेंट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे जरूरत है। और सपोर्ट्स कितनी जरूरत है हटाने की, 2 सपोर्ट हटाने की जरूरत है। तो ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, तो टोटल सपोर्ट needs to be removed is 2 and total constraint needs to be added is 1। जस्ट फॉर्मूला हमें पता ही है, सपोर्ट रिमूव्ड माइनस कंस्ट्रेंट एडेड। तो सपोर्ट रिमूव्ड यहाँ पे 2 है, कंस्ट्रेंट एडेड 1 है, तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 1। वेरी सिंपल अप्रोच, बस कीप थिंग्स इन माइंड।
हमारे स्ट्रक्चर को सिंपली, आपको फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको अपने स्ट्रक्चर को आपको बनाना है कैंटिलीवर। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, कितने सपोर्ट्स को ऐड करने की जरूरत है, रिमूव करने की जरूरत है, और कितने कंस्ट्रेंट को ऐड करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कंस्ट्रेंट कहाँ कहाँ पे ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कि हमें इसको कैंटिलीवर बनाना है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो, बाकी को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम फिक्स सपोर्ट बनाएंगे। तो अब ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट हमें एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, तो हम जानते हैं कि हमें इसको फिक्स बनाना है, तो हमें टोटल चाहिए 3। तो यहाँ पे हमें 2 कंस्ट्रेंट को ऐड करने पड़ेंगे, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो कंस्ट्रेंट एडेड में एक तो पहले यहाँ जुड़ जाएगा कि कैंटिलीवर बनाने के लिए इसको फिक्स बनाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है। अब 2 यहाँ पे इंटरनल हिंज भी है, तो यहाँ पे भी एक एक ऐड करने पड़ेंगे, m-1 और m-1, तो 2 हो गए, टोटल हो गया हमारा 4। 2 + 2 4, तो कंस्ट्रेंट नीड्स टू बी एडेड इज 4, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सपोर्ट कितना रिमूव करना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। नाउ देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें सपोर्ट जब रिमूव कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या देख, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितना सपोर्ट हम रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट रिमूव हुआ है, तो हिंज सपोर्ट के 2 रिएक्शन रिमूव हुए हैं। यहाँ पे रोलर सपोर्ट रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे 1 रिएक्शन रिमूव हुआ है, और ये भी रोलर सपोर्ट यहाँ से रिमूव हो गया। टोटल हमने सपोर्ट को रिमूव करने के लिए 4 रिएक्शन को हमने रिमूव कर दिया, राइट। बस तो यही आपको अप्लाई कर देना है। कंस्ट्रेंट एडिट कितना हो गया, ये चीज याद रखना है। कंस्ट्रेंट हमें 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ा इसको फिक्स बनाने के लिए, और 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ा इन दोनों को कंटिन्यूस बनाने के लिए। तो 4 हमें कंस्ट्रेंट ऐड करने पड़े हैं। और सपोर्ट जितना हमने रिमूव किया है, एक हिंज को रिमूव किया, 2 रिएक्शन को हमने रिमूव कर दिया। रोलर को रिमूव किया, 1 रिएक्शन को रिमूव किया, अगेन रोलर को रिमूव किया, 1 रिएक्शन को हमने रिमूव किया। टोटल 4 हमने सपोर्ट रिएक्शन भी रिमूव कर दिया, सपोर्ट को हमने हटा दिया था। तो 4 - 4 इज द सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें पता है, सपोर्ट रिमूव्ड माइनस कंस्ट्रेंट एडेड, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस ये हमारा स्ट्रक्चरली बीम हमारा डिटर्मिनेट है कंप्लीटली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर बीम, बट इट इज कवरिंग ऑल द टाइप्स। देखिए यहाँ पे इंटरनल हिंज भी है और लिंक भी है। तो हम जानते हैं कि जब हिंज सपोर्ट होता है, इंटरनल हिंज, तो 1 रिएक्शन रिमूव होता है, और लिंक होता है तो 2 रिएक्शन मतलब ऐड होते हैं, हमारे पास इक्वेशंस ऐड होते हैं कि सिग्मा m = भी 0 यहाँ पे होगा, और लिंक के केस में इन दोनों जगह पे सिग्मा m = 0 होगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल हिंज के साथ हम कर रहे हैं वही करेंगे, बट 2 टाइम्स हो जाएगा। बस दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड अ लिंक। चलिए आगे चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। बस वही, सबसे पहले हमें इसे कैंटिलीवर बनाना है, तो हमें सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रिएस्टेंट एडेड। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हिंज है, इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि 2 पहले से ही अवेलेबल है। तो ये एक तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बी, यहाँ भी हिंज है, तो यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो लिंक के केस में 2 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंड पे ऐड हो गए। तो 1 2 3 4 भी ही हमारा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट एडेड में है, ठीक है। कंस्ट्रेंट एडेड में सिर्फ और सिर्फ हमारा 4 है। अब नाउ क्या करेंगे, सपोर्ट रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 रिमूव करेंगे क्योंकि हिंज हो रहा है, यहाँ पे हम 1 करेंगे, और यहाँ पे हम 1 करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो हमने 4 ही कंस्ट्रेंट भी ऐड किए हैं, और सपोर्ट भी हमने 4 ही रिमूव किए हैं। तो 4 - 4 अगेन इट वुड बिकम 0। अब देखिए स्टैटिकली कैसा है, डिटर्मिनेट, राइट। तो क्योंकि 0 आ रहा है। अब एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, अ बीम इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट। कोई भी हमारा बीम है, कोई भी बीम है, तो इंटरनली हमेशा वो कैसा होता है, डिटर्मिनेट होता है। तो इसलिए टोटल इंटरमिनेसी स्पेस में जो भी आएगा वो हमेशा ही हमेशा DSE के ही बराबर होगा बीम के केस में, राइट। So this thing you have to keep in mind always for a beam or any type of beam. टोटल डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी हमेशा एक्सटर्नल इंटरमिनेसी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर पार्ट लेने के लिए नहीं है जो इसको अनस्टेबल करे, राइट। देयर इज नो मेंबर लाइक दिस। इस केस में DSI का रोल नहीं होता है, कोई भी बीम हो, ठीक है। तो बीम हमेशा इंटरनली डिटर्मिनेट ही होता है। चलिए लास्टली, दिस इज द लास्ट पोर्शन, ट्रस की हम कैसे फाइंड करते हैं। ट्रस के लिए हमें ये 3 कंडीशन याद रखना है, m + r - 2j, m + r - 2j। तो m इज द मेंबर है यहाँ पे, r इज द रिएक्शन, j इज द ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम
ये सब हमारा जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे डॉट दिख रहे हैं आपको ये जॉइंट्स हैं, ये सब हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है। और रिएक्शन जो हमें पहले से फाइंड करते आए हैं। अब देखते हैं कि ये अब कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये m प्लस आर माइनस टू जे जीरो के बराबर है, दैट मीन्स वी हैव perfect ट्रस, दैट मीन्स स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस एंड इट इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस। कि जितनी मेंबर और रिएक्शन की जरूरत है उतना ही हमारे स्ट्रक्चर में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों अवेलेबल है, दैट मीन्स आवर स्ट्रक्चर इज परफेक्ट ट्रस और स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस, राइट। दिस इज प्लेन ट्रस, स्पेस ट्रस बोलते हैं 3D को। अगर m प्लस आर माइनस टू जे की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स वी हैव मोर रिएक्शन कंपोनेंट। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिकली इंटरमिनेट हो जाएगा। अगर ये कम है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिफिशियंट ट्रस, डिफिशियंट ट्रस मतलब इस केस में हमारे पास मेंबर कम पड़ रहा है जितनी हमें स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है, राइट। सो अ ट्रस मेंबर लाइक दिस is not called stable, right, but truss member with this arrangement is called stable because there is nothing to restrain to make this structure restrained in this direction, right. So this is unstable but this is stable configuration in case of truss. चलिए आगे चलते हैं, इसके हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिटरमिनेसी कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए सिंपल है, एक्सटर्नल फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला R-3 और R-6, रिएक्शन -3 2D केस के लिए और रिएक्शन -6 3D केस के लिए। और टोटल फाइंड करने के लिए एक्सटर्नल इंटरमिनेसी हो गया, और स्टैटिक इंटरमिनेसी टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, m प्लस आर माइनस टू जे, हम इसी को कहते हैं स्टैटिक इंटरमिनेसी। अब इसमें से जो R-3 है ये हमारा एक्सटर्नल है, और ये जो है ये हमारा इंटरनल है, ठीक है। m-2j-3 हमारा क्या है, इंटरनल, और इन दोनों का सम हम जानते हैं टोटल डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी के बराबर होता है, विच इज दिस वन, राइट। तो आप जैसे फाइंड करना चाहें, इसको अलग से फाइंड करें, इसको अलग से फाइंड करें, और इन दोनों को जोड़ के हम ds फाइंड करें, या फिर हम ऐसे फाइंड करें, कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो m प्लस आर माइनस टू जे प्लस आर माइनस थ्री फाइनल इक्वेशन बनेगा ये इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंडीशन क्या होगी, इफ मेंबर इज ग्रेटर देन 2 इंटू ज्वाइंट -3, तो स्ट्रक्चर हमारा इंटरनली इंडिटर्मिनेट है और स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें दो कंडीशन ऐसा याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसे है, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, सिंपल सी बात है। बट ग्रेटर है तो इनडिटर्मिनेट होगा और इक्वल है तो डिटर्मिनेट होगा, बट स्टेबल दोनों ही कंडीशन में रहेगा। एक ही ऐसा कंडीशन है कि अगर मेंबर लेस देन हो जाए 2 टाइम्स ज्वाइंट -3 के, तो उस केस में हमारा इंटरनली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, वो खड़ा नहीं रहेगा, वो फॉल हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज द कंडीशन टू चेक द स्टेबिलिटी एज वेल एज द इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं, स्टैटिक इंटरमिनेसी ऑफ ट्रस। हमने अभी देखा ये किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, स्पेस ट्रस के लिए। अभी हमने 2D के लिए फाइंड किया, अभी हमने देखा था ds-3 r-3 r-6 हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है वो तो 1 ही रहेगा, जहाँ पे 2 दिख रहा है वो 3 हो जाएगा, जहाँ पे 3 दिख रहा है वो 6 हो जाएगा। यही है 2D से 3D में कन्वर्जन करने का तरीका। 1 ही रहेगा क्योंकि 1 रोलर के बराबर होता है, 2 हिंज 3 हिंज के बराबर होता है, और 3 फिक्स 6 फिक्स के बराबर होता है, इसलिए 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6 में, और 1 का 1 ही रहेगा। बस यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई करना है, लेस देन 0 अनस्टेबल, इक्वल टू 0 स्टेबल और डिटर्मिनेट, ग्रेटर देन 0 इनडिटर्मिनेट, ठीक है। चलते हैं अब लास्टली क्वेश्चन पे, स्टैटिक इंटरमिनेसी ऑफ ट्रस। अब ये ट्रस का क्वेश्चन है, तो टोटल डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी हमें फाइंड करना है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दैट मीन्स टोटल के मीन्स ये होता है कि दोनों का सम ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेन ट्रस शोन इन फिगर बिलो। अब देखिए इस केस में हमें क्या करना है, मेंबर फाइंड करने हैं, जॉइंट फाइंड करने हैं, बस हो गया। और नीचे दोनों हिंज है, तो आर की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे कितनी है, 2 + 2 4, ठीक। तो 4 - 3 इज 1, एंड ये 1 किसके बराबर में है, ये 1 ds ई के बराबर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरमिनेसी फाइंड हो गया। नाउ ds डिग्री ऑफ
स्टैटिक इंटरमिनेसी टोटल भी हम फाइंड कर सकते हैं और इंटरनल भी फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब देखिए अगर आप एक्सटर्नल फाइंड करेंगे तो टोटल भी फाइंड कर सकते हैं m+r-2j से, तो टोटल भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उससे इंटरनल मिल जाएगा। अगर आप इंटरनल फाइंड करना चाहें तो आप ऐसे m-2j-3 से फाइंड कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल फाइंड करके इसमें जोड़ दें, या फिर आपने ये फाइंड कर लिया और ये फाइंड कर लिया तो माइनस करके निकाल लो। तो m+r-2j करके भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो m+r-2j हम जानते हैं टोटल डिग्री के लिए होता है। तो मेंबर कितने आप इसमें सिंपली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 मेंबर इज देयर, प्लस रिएक्शन कितना है हमने अभी देखा, 2 + 2 4 माइनस 2 इंटू ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 22 माइनस 18, दिस इज 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि DSE कितना है, 1 है, एक्सटर्नल 1 है और टोटल 4 है, तो DSI कितना हो जाएगा 3, राइट। सो हम इसको कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर इस केस में आपसे कुछ भी पूछता, एक्सटर्नल पूछे तो भी फाइंड कर सकते हो, इंटरनल पूछता है तो भी फाइंड कर सकते हो, इंटरनल पूछता है तो भी आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। इस केस में क्या पूछा है, टोटल, तो टोटल हमारा हो जाएगा 4, सो B will be the correct answer, right? So in this way you can easily find static indeterminacy of any plane, beam or frame. Last question है ये, अब कह रहा है consider the following statement with respect to figure given below typical articulated frame. अब हमें इसमें चेक करना है कि इंटरनली डिटर्मिनेट है, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है, तो उसके लिए कंडीशन हमें क्या है, हमें m को चेक करना है 2j-3 के साथ कि ये बड़ा है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है, या इक्वल है। तो देखते हैं इसमें मेंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट मीन्स मेंबर इज 9। 2 टाइम्स ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं 1 2 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं इसकी वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, 12 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 9। तो 9 9 इक्वल है, तो हमने ये कंडीशन पढ़ा था कि अगर दोनों इक्वल हो तो डिटरमिनेट भी होगा एंड स्टेबल भी होगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, डिटरमिनेट तो है ही और एक्सटर्नली इंटरमिनेट नहीं, दोनों तरह से ये डिटरमिनेट है। ठीक है, देखते हैं, इंटरनली इंटरमिनेट नहीं भाई, इंटरमिनेट तो है ही नहीं, द फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिटरमिनेट, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और तरीका क्या है, ds डायरेक्टली फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ds डायरेक्टली फाइंड कर लीजिए, जैसा हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया m+r-2j करके, तो उससे ही पता चल जाएगा आपको m+r-2j, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी है। ठीक है, तो मेंबर हमें पता है कि यहाँ पे 9 है और रिएक्शन कितना है 3 है, -2 टाइम्स ज्वाइंट कितने हैं 6 है, तो 12 माइनस 12 0। टोटल जब 0 हो गया और एक्सटर्नल भी 0 है, क्योंकि 3 माइनस 3, तो टोटल 0 एक्सटर्नल 0 है तो इंटरनल भी 0 ही होगा, तो सब 0 0 है, मतलब ये हर एक तरह से डिटर्मिनेट ट्रस है हमारा। ठीक है, टोटल भी 0, एक्सटर्नल भी 0, इंटरनल भी 0, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2j-3, तो ये स्टेबल भी है, डिटर्मिनेट भी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन सही दिखेगा कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही डिटर्मिनेट है और स्टेबल भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। So this was from my end. So we have covered all types of statical determinacy calculation for all types of structure. In the next part we will discuss about kinematic indeterminacy for all types of structure that we have already discussed in this part, right? Thank you all, thanks for watching. Like the video if you like the content, subscribe the channel. Thank you. If you have any doubt you can comment, I will definitely answer it. Thank you all.